Start. So, welcome to the beautiful, beautiful Sunday session. And I hope everyone has had a beautiful week. Um, Personally, it's been a bit rough this week for me. Um, was I wanted to share a story with all of you that is very powerful, extremely powerful, which has happened this week. And I think everyone has a lot to learn from this, including myself and the lessons that I learned from it. So what happened was I thought that I lost a lot of blood. Like if I would go to the washroom, I thought I was losing blood was coming out of my body, you know. And I noticed it and I was like, okay, I don't know what to do about this. Then I got so scared. I got so scared that there is blood coming out of my system and I don't know what it is because I don't feel any pain. I don't feel something is wrong with me. I'm feeling good. But what started happening was I went on Google and then I was like, "Ki, blood is coming out of my system. What could this be?" It would give me, it could be cancer, it could be this, it could be that. And then in my head, I started feeling dizzy. And then I went to the washroom again, and then uske baad again I saw, okay, it's blood, and then I felt so dizzy again. Started feeling dizzy. I could feel that I will just fall anytime. Energy was very low. I felt sick. I felt ki I had fever or something. So we went to the doctor. The doctor checked, and they were like, "Iske blood test karwao," and then we will have to see what it actually is. So got my blood test done. Blood test came out very normal. But that day when the blood test was happening, that day also I felt ki my head was aching all over the place. I had fever and I had not gone to the washroom that day, also out of fear ki I don't want to see blood again. You know, a lot of fears came up. So funny, the next day I wake up yesterday in the morning, I come out of my room and my mother comes up to me and then she's like, what has happened to you? It is not blood. I go, what has happened? Kehte, it's the beetroot juice that you drink every single night. Now, see, it's so funny, right? I mean, what had happened was a couple of weeks back, you know, I had noticed that this happened for a week. Like blood was coming out, but I didn't feel any physical pain or dizziness or anything. And I was like, "Theek ho jayega ye jo bhi hai." It can't be true. It was like, yeah, I just could not feel anything. But then it happened like the other day again. And then she was right because the night before I had had two big glasses of beetroot juice because I love that juice, you know. And then we did an experiment yesterday that, let's not drink beetroot juice for a day and see what happens. And then exactly that happened. No beetroot juice came out. So, you know, the power of the mind, it can make you fall sick without even you catching viral, without even you catching anything, any from anywhere, anyone. It is so strong that it can make you feel dizzy. We went to watch the movie ना, अभी मूवी देखने गए थे हम सारे हॉल में. मुझे हॉल में बैठे बैठे सफोकेशन हो रही थी. आई वॉज फीलिंग लाइक आई विल फेंट. एंड आई एम टेलिंग माई ब्रदर कि मुझे हॉल में ऐसा लग रहा था एंड ही इज ऑल कंसर्न कि कुछ होएगा तो मुझे बताइयो, ये वो. एंड देन yesterday I sit with myself and I'm like कि watch how strong the mind is, है ना? Because as soon as I heard from my mother कि it's beetroot juice, it was like a weight had lifted over my body. Some
I was possessed and now, I'm free of the possession. कोई काले जादू हो रहा था मेरे पे और अब उड़ गया है ना? A veil of darkness is lifted from me. And that is just very a beautiful way for God to put you in a situation like that again, that you realize ki, there is so much what your mind is capable of. Point is ki it's true for the opposite as well. Like the fear it creates, the suffering it can create for you, it can do the same with the healing aspect of it as well. It can do the same. Point is, every single time you see ki, this mind has done this to you, it's an alarm bell for you to, realize ki mind is taking over. And you can only realize that क्योंकि हम लोग ध्यान करते हैं, life is comparatively easier now because we see world through different lens, but when a hard situation is created around you, that is when you really find out, कि what is actually happening. And that was an opportunity for me to find this out. My mind was so in control that it is so strong that it made me have fever for no reason. I had fever. I was down with fever. My head was exploding. In my mind, it was telling me cancer, cancer, cancer. Now I was watching it, and some individuals in my household also just added to that fear, but it was just like, this is crazy because our family has a history in cancer, and it's there. Obviously, your mind goes in that direction completely. But it's so powerful. And I was like, I need to share all of this with you because it reminds us again and again the power of the mind. It is a very beautiful tool, but, the more we meditate, the more the distance is there from the mind. And then, when these thoughts are coming up, you don't get involved in them. I was trying to watch it, but it got so overwhelming at a point, that I got so involved that I fell sick, So just to share that little story with you, little scare I had, and then yesterday I was feeling very good. 2-3 दिन तो I was like कि मैं क्या बोलूं ग्रुप पे. Guys, I don't know how long I have left, but see you in the next life. Death came up. Fear of death came up, and yeah, no, I'm really good now. Abhi fever also, like till yesterday evening only I got better because I did my Kundalini, and then since that I've been very, very calm and peaceful since then. Because I was watching these thoughts a lot. They all came up. कि 2 दिन I had not been meditating. I was just not feeling well at all because of this dizziness. Went to the doctor, just feeling sick all the time. So could see that, if I had just pushed through maybe and did some gibberish or लेटे-लेटे chakra sound कर लेता, कुछ कर लेता, in moments में actually it's even more important that we do a practice and see that, it will show you right there and then that it was your mind. It is the best time to maybe do a practice is when your these feelings and thoughts are very, very strong, because after the practice it's a very big realization that can happen within us that it was just that this is not the reality. So for everyone, whenever any one of us goes through something like this, just remember this story and maybe meditate right there and then, and then realize that it wasn't you that is sick or in that dark emotion or whatever.
completely something else. So yeah. So strange. It's so strange. You know? So that was my week summed up. Really, that was about it. You know. But I would love to know. Now we'll come to everyone one by one. आप सबने क्या लिखा है? Today Manchu gifted me 3 beat. Yeah, she gifted me in the morning. देख, मैं तो कह रहा हूँ हम सारे बहुत कनेक्टेड है. मैं तो बोल ही रहा हूँ. Moon has to go. Yeah, bye. I feel like I haven't spoken to you in like weeks. Yeah, that's true. I feel hurt. It's meant to be. I think there's a space needed. अच्छा. Yeah. ठीक है. That's fine. I respect that. I'm bottled up at the moment. You also निकालो. ये सब वही है. मैं कह रहा हूँ सबके साथ सेम चीज ही चल रही होती है. At all times. Himanshu also going through her fears and all. It was all not a coincidence. So it happens, you know, for some reason to show us something. So I'm just Anyway, bye. सवित्री को फाइन लगाओ. सवित्री आई आज इतनी दिन बाद. इसको फाइन लगाओ. नहीं है. हाँ, आ गई है. Actually, I'm missing your humor. You know that? I'm actually missing your humor a lot. सबसे ज्यादा शायद इस ग्रुप में I'm missing your humor. करण आपकी बात की तारीफ हो रही है. अच्छा उसको मेरी समझ नहीं आ बात. रहा. थैंक यू थैंक यू. I think there's only one Karan in this group, right? You're the famous नहीं Karan, नहीं right? मैंने सुनी नहीं थी आपकी बात. अब सुनी तो सुनी? आई लाइक इट. Anyway, I will see you. थैंक यू सो मच. I'll see you. Bye. बाय. हाँ जी. आज सवित्री आई है ना. आज सवित्री आई है फाइनली. और क्या अभी ज्वाइन हुआ. वो भी मेडिटेशन के बाद किया उन्होंने. देख लो. चलो. एनीवेज लेट्स गेट ऑन टू पीपल नाउ. भूमि आप तो सबसे पहले ही आओगे ऑब्वियसली, है ना. हम स्टार्ट करेंगे. आइए स्वागत है आपका. नहीं, आज हम सावित्री से स्टार्ट करते हैं. Because Savitri Oh has not been with us for a very long time. Savitri, you remembered us finally. Trust me, I never forgot you. All definitely. I do meditation Gurman all like in every day. I had some exams and I'm still having some exams, and like we went to India, we came back, so many things going on. But I'm very active on, like, you know, I see your messages, everyone's messages. Like I was so jealous, like when Bhumi, Moon and everyone were there together. Yeah, so all good. How you all are doing? Is everything okay? You're cute. तो इंडिया कैसा था? बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया. Like we had only like 3 weeks, like 2.5 weeks. So there was a wedding. तो बहुत ही बढ़िया मजा आया फैमिली के साथ. I did not get a chance to go to my family. Like I am from Karnataka, so my husband is in Indore. तो हम सिर्फ इंदौर गए थे, and yeah, lots of fun with the family. बहुत मजा आया. I was speaking to Bhumi, like, you know, we were planning to meet, but it was too late to, like, you know, she was in there. भूमि से सारी बात करते हैं, मैंने देखा है. भूमि is like everyone's favorite. इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आपके पास? जरा मुझे एक बार बताओ आप. ये क्या है? एक्चुअली मुझे ऐसे ही सबकी याद आती है और मैं मैसेज कर देती हूँ और फिर एक कन्वर्सेशन हो जाता है. मतलब ये कुछ इंटेंशनली सोच के या ऐसा कुछ नहीं होता, बट अपने आप बस हो जाता है. Bhumika, I have seen, like, she's very caring, and I feel like very much connected with her. रेड बुल पीती है वो. No, she is Mother Earth. That's why her name is Bhumi. And Bhumi, you have the same equation with everyone, so it's such a nice thing. Bless you. Genuinely, it's so she's so connected. Like
she messaged me yesterday, are you okay? And I feel you haven't been there. Are you doing okay? अंशुमन का भी आया था मुझे मैसेज कि are you okay? I noticed कि आप ग्रुप पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, you know, आपको क्या चल रहा है. तो I was just like, it's so nice कि you know, so beautiful, इतनी पावरफुल कनेक्शन है लोगों के साथ इस ग्रुप पे. मैं भी नहीं किया था रिस्पॉन्ड, understand. मेरे को नहीं आया किसी का मैसेज. वैसे ही काम करते हो. And like in fact, because of Bhumi, I was feeling so much even connected, you know, like everyday message and talking to her like frequently. So thank you, Bhumi. Love you. भूमि हायर होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ. भूमि थोड़ी कृपया इधर भी कर दो. नहीं कर रहे. तुम्हें भी तो जॉब दी थी अभी. आपने की अपनी जॉब, मुझे ये बताओ. टुडे हिमांशु गिफ्टेड मी. फिर से भेजा है करण ने. एक सेकंड, करण कहाँ चले गया? गायब. I think he left. उनका फोन हो गया होगा डिस्चार्ज प्रोबेबली. चलो, एनीवेज इट्स ओके. करण को बोला था हाय हिमांशु. Hey, he How is- joined it back. I'm good. How are you? Feeling आप- better. Sorry, आपके sorry. हेयर एक्स्ट्रा ब्लैक लग रहे हैं फॉर सम रीजन. Extra black हुए हैं. कलर होने वाला Thank है you ना, for a इसीलिए. compliment. हाँ, एक्स्ट्रा ब्लैक लग रहे हैं, थोड़े ज्यादा डार्कर हेवी, मतलब हेवी लग रहे हैं. Maybe जग location change हुई है, पानी change हुआ है, तो maybe that's why. हाँ, हो सकता है. आपका बैकग्राउंड भी चेंज हुआ है ना. बहुत सारा सब change हो गया. Everything changed. Moved ना. You both of you Yeah. have moved somewhere else. तो Yeah. अब क्या तुम प्रांशु कहाँ है? कहाँ पर है करण? पता नहीं मेरे को खुद. वो काफी देर से मैं देखा नहीं उनको. वो बहुत ज्यादा खुश है, maybe उसके parents आ रहे हैं ना. ओह, Yeah. अच्छा. So he's maybe preparing for them. अच्छा. अच्छा. Gurman, how are you Yeah. feeling now? He's meeting after 8 years. He's- अच्छा. Yeah. ओह, So वाओ. थोड़ा उसकी घर वालों ने उसको बेदखल कर दिया. एक्चुअली और नहीं सच में. आप इतना सच्ची ना लेके जाया करो मेरी बातों को. कुछ घर वाले कर भी देते हैं. नहीं. जब उसने ये रिकॉर्डिंग देखनी है उसने मेरे को गालियां देनी है. गाइस, तुम्हारी बुक्स पहुंची, तुमने पता किया? हाँ पहुंच गई हैं. आई थिंक कल पहुंची थी. हम्म. पहुंच गई हैं. ठीक है. देवर्षिता, तुम्हारी ना अभी बुक मैंने भेजनी है, वो मैं कल भेजूंगा क्योंकि एक गलती हो गई थी मेरे से. तो मैं आपकी बुक कल तक भिजवा दूंगा, सो डोंट वरी. ठीक है, आई विल डू दैट. तो हिमांशु, हाउ आर यू? आई एम मच बेटर आफ्टर. ये क्या हुआ, क्या है ये एग्जैक्टली? थोड़ा समझाओ हमें. सो मैं जहाँ पहले रहती थी वहां से मैं मूव हुई. यहाँ पर हम घर ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, तो एक नोन में ही यहाँ पर जो रहते थे पहले वो हमारे नोन थे. तो उन्होंने फेसबुक पे डाला हुआ था एंड हमें पता चला कि वो हैं, तो हम उनके डायरेक्टली कांटेक्ट करके हम उनके घर पर व्यू करने आ गए. एंड उस इवनिंग का टाइम था. आसपास जगह पता नहीं चल रही थी क्या है आसपास, बिकॉज नई जगह है हमारे लिए ये. तो हमने बोला कि हाँ वी आर ओके बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, और ये बहुत महंगी जगह है जहाँ पर हम मूव हुए हैं. एंड हमने डन कर दिया, हमने साइन वगैरह कर दिया कॉन्ट्रैक्ट. देन थोड़े दिनों के बाद हम मॉर्निंग में देखने आए कि जगह कैसा है आसपास. तो मैंने देखा सामने ग्रेवयार्ड है, तो मेरी तो लग गई. मैंने कहा ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने. उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आई. मैं वहां पर नहीं स्टे कर रही थी, कहीं किसी और के घर पर स्टे कर रही थी. आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक कि मैं कैसे रहूंगी वहां पे. एंड मुझे उसी रात को ड्रीम भी आया कि मैं उस घर में हूँ एंड उस घर में जो मेरी चाइल्डहुड की मेमोरी थी, मैंने बचपन में एक चीज देखी थी किसी के अंदर आती हुई,
और वो उनके टेम्पल के नीचे कोई लड़कियों को उन्होंने दबाया हुआ था, किसी जो भी पहले वहां पर रहता होगा, एंड उन्होंने कुछ किया उसका, तो लाइक पूजा वगैरह करवाई, तो वो जो भी आत्मा थी या सोल थी वो उनके जो डॉटर इन लॉ होती है उनके अंदर आ गए हैं। आई वाज सिटिंग इन माय रूम और मेरे को बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी, रात का टाइम था और लाइट भी चली गई। तो मैं बाहर गई तो मैंने देखा एक लेडी आई, उन्होंने मुझे कहा कि तू अंदर जा। मैं अपने घर पर आ गई एंड बट आई वाज लिसनिंग फ्रॉम देयर। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये प्रोसेस 3 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली चलता रहा और वो हमारे घर के बिल्कुल सामने थे। वो परफ्यूम लगाते थे तो फिर उसके अंदर वो दोबारा से आकर वो बोलने लग जाती थी। और उन्होंने अपनी स्टोरी या उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि देयर वर 2 सिस्टर्स जिनको वहां पर कोई मुस्लिम फैमिली रहती थी। उन्होंने उनके साथ कुछ गलत करके उनको मारकर उनके घर के नीचे दबा दिया था। एंड शी वांटेड कि अब उनकी जो जैसे मुस्लिम लोगों की वो बनती है ना एक प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, जैसे क्रिश्चियन लोगों की भी बनाते हैं, आई दरगाह। डोंट, दरगाह, या वो बनवानी है। अगर वो नहीं बनवाएंगे तो वो उनके घर से नहीं जाएंगे। सो ये 3 मंथ्स तक ये प्रोसेस चलता रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसको संगल से बांध कर लेकर जाते थे एंड शी वाज सो वाइल्ड कि वो लोगों को ऐसे उठा उठा कर मारती थी। लिटरली। हैरानी की बात पता है क्या, ये इसी दिन की वैसी स्टोरी आई जो मेरे भाई आया हुआ है। मेरे भाई को बहुत पसंद है ये सब कुछ। ये पसंद होना दूसरी बात है, बट इसको रियल लाइफ में देखना नेक्स्ट लेवल। और नहीं, मैं और, थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा एक्साइट हो गया, लाइक मेरे दिमाग में तो पूरा वो चल रहा है कि कैसे हुआ एंड है। विद टॉप एक्चुअल में ऑफ, देखा मैं। या एक्चुअल में हुआ है ये। एंड विद टॉप ऑफ दैट मेरे पेरेंट्स और हम पूरी फैमिली, ये इंसिडेंट होने के बाद हम बालाजी, राजस्थान में कोई टेम्पल है हनुमान जी का, मेरे पेरेंट्स वहां पर लेकर गए मुझे। वहां पर जैसे ही हम टेम्पल के अंदर एंटर हुए, एनर्जी वाज सो स्ट्रॉन्ग। और वहां पे ऐसे लोग थे जो दीवार पे चल रहे थे, जो पेड़ों पे लटके हुए थे, कोई ऐसे ऐसे अपना सर घुमा रहा है। एक ब्लैक कलर का होल था, उसके अंदर एंटर करो, लोग क्रेजी नहीं होते, क्रेजी उनको पता नहीं होता कि क्या कर रहे हैं वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहे थे। वो देख के मैंने कहा निकलो यहाँ से। एंड वहां पर मंदिर में बोलते हैं कि वहां का कोई चीज खाकर नहीं आनी, वहां की कोई पानी नहीं पी के आना पीछे नहीं वहां देखना। पर, या पीछे नहीं देखना। एंड उसके हम्म, बाद तो आई वाज लाइक कि ये सारी चीजें सही होती है बट मैं सही हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है। बिकॉज जिसके अंदर भी कुछ भी होता है वो टेम्पल के अंदर एंटर करता है तो वो बाहर आने लग जाता है। बिकॉज द टेम्पल एनर्जी सो स्ट्रॉन्ग कि वो अनइवन एनर्जी निकलेगी ही बाहर। इट्स अ टास्क कि वहां पर कोई नॉर्मल इंसान जाए, और अगर जाए तो वो भूतों को देख कर आएगा अपनी आंखों से। सेकंड डे इसने मेरे को फोन किया रात को 11 बजे, कहती मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को डर लग रहा है, तू फोन पे रह, जब मैं सोगी फोन काट दूं। आई वाज लाइक, तो मतलब अगर नॉर्मल इंसान कोई जिसके साथ ऐसी चीज नहीं हुई हो, अगर उसको भी तुम कह दो ना कि सामने ग्रेवयार्ड है और सामने तुम्हारा घर है, तुम्हें रहना पड़ेगा, लगेगी थोड़ी सी तो ऐसा होएगा कि नहीं नहीं ऐसे मैं कैसे कर दूं। बट कोई नहीं, अब कृष्ण जी चाहते हैं यही, अब रहना तो पड़ेगा ही। बहुत किस्मत वाली हो। तो देन आफ्टर दैट वो 3 दिन हो गए थे इस बात को। मैं मैं उसके बाद मैं पूरे घर में घूमी, मैंने एनर्जी ऑब्जर्व की। तो बैक ऑफ द एरिया जहाँ पर मैं अभी बैठी हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ अनइवन सा लगा, वॉशरूम वाली साइड और इस इधर वाली साइड। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैंने जब फर्स्ट डे आए, मैंने थोड़ी वो सेज वगैरह जलाई, पाठ किया, पूजा वगैरह की, बट स्टिल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इस वाली साइड आने में। देन उस दिन जिस दिन मैंने ग्रुप में मैसेज किया, उसके नेक्स्ट डे मैं यहीं पर आकर बैठी, मैंने यहीं पर आकर मेडिटेशन की। मैंने कहा क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, कोई अंदर आ जाएगा,
मर जाऊंगी बट रहूंगी तो यहीं पर। यही हिम्मत रखकर मैं आई एंड मैंने अलो किया कि जस्ट रिलीज इट, जो भी है एनर्जी, विंडो ओपन की कि जस्ट लेट इट पास, जो भी एनर्जी, आई डोंट नो क्या एनर्जी थी वो। एंड वहां पर बैठकर मेडिटेशन किया, लव को स्प्रेड आउट किया थोड़ा सा, तो ठीक हो गया। अब मैं वहीं पे बैठी हूँ, यहीं पर सो रही हूँ। तुम्हें पता है हिमांशु, मेरे घर में भी ना, जैसे अभी जिस कमरे में भैया बैठे हुए हैं वो मेरा कमरा है। तो हमारे घर का सबसे डिंजीएस्ट डार्केस्ट कमरा वही कमरा होता था, यू नो। बट अब दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट हाईली एनर्जेटिक रूम इन द हाउस, क्योंकि वहाँ ओशो की किताबें पढ़ी हुई हैं, वहाँ ध्यान होता है। अब तो ओशो का वहाँ पे सिग्नेचर भी है ना। तो जितना मैंने इससे रियलाइज किया है ना कि जितना हम ध्यान करते हैं, ये जो बैड स्पिरिट्स भी होती है ना, इनको रिलीज होने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे में घुस जाएंगी, उल्टा हम उनको ऐसी एनर्जी का शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ उनको किसी तरह का रिलीज मिल पाए, वो मुक्त हो पाए। समझ रहे हो? तो दो तरीके होते हैं इस चीज को देखने के। मुझे बहुत डर लगता था। मैं इसी कमरे में या तो भैया के साथ सोता होता था या अपने मम्मा पापा के साथ सोता था बचपन में। तो रात को क्या होता था, लाइटें ऑफ होती थी इस कॉरिडोर की, और वहां ड्राइंग रूम दिखता था, वहां पे भी काला पूरा वो डार्क होता था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलता था इतना डरता था मैं कि उस ड्राइंग रूम में कुछ है। ठीक है। और ये मेरी दादी का कमरा होता था जिसमें मैं अभी रहता हूँ। वहां पे भी जब भी हम जाते थे ना, उस कमरे में इतने इंसिडेंट्स हुए हैं ना, मतलब लो रब का नाम, कितनी बारी दादी गिरे हैं, कितनी कितनी नेगेटिव चीजें हुई हैं उस कमरे में, है ना। इवन अभी रिसेंटली भी मेरे बुआ आए हुए थे 2-3 साल पहले, 2 साल पहले आई थिंक। वो भी आए हैं, उनके साथ भी बुरा इंसिडेंट हुआ है वहां पे, है ना। पर जब से ध्यान शुरू हुआ है ना इस घर में, है ना, एक स्पॉट नहीं है अब इस घर का जहां मैं कहूंगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी है। इस घर में एक स्पॉट नहीं है ना। और हमें तो कहते भी हैं आश्रम में कि 40 दिन अगर तुम एक जगह पे ध्यान करते हो ना बैठ के, वहां तुम एक बुद्धा फील्ड क्रिएट कर लेते हो, छोटी सी, है ना। and उस बुद्धा फील्ड में कोई भी स्पिरिट आती भी है, कि स्पिरिट्स एग्जिस्ट, फॉर श्योर दे एग्जिस्ट, है ना। नेगेटिव स्पिरिट्स एग्जिस्ट, काफी हैं स्पिरिट्स जो अभी इतनी अटैच्ड हैं इस रेल्म से, वो नहीं पास कर पाई। वी स्पोक अबाउट इट आई थिंक 2 सेशंस अगो, है ना। तो आपके ध्यान करने से आप इतने लोगों को मुक्त कर रहे हो। मैं एक स्टोरी शेयर करूँ छोटी सी। हाँ हाँ। आनंद जी ने मेरे को बताई थी। आई थिंक आप लोगों को पता है आनंद जी कौन है। सबको सबको पता है ना। हम्म, सो जबलपुर में जो आश्रम है ना, वहाँ पे द पर्सन हु रन्स इट, तो वो एनलाइटेंड है अभी। सो वो ओशो के साथ पहले, व्हेन ओशो वाज मे बी 22-23, आफ्टर ओशो गॉट एनलाइटेंड, तो ओशो ने उनको कहा था कि जबलपुर में एक जगह है, तो तू वहां पे जा और डायनामिक मेडिटेशन वहां पे तू कर। सो इतना बोल के, लाइक, ही जस्ट टोल्ड हिम कि जाके तू कर। सो वो गए, उन्होंने स्टार्ट किया, पहले ब्रीदिंग करी। यहाँ पे करी हुई है किसी ने डायनामिक? करी हाँ, हुई है ना? प्रिया ने, भूमि ने, मैंने, हिमांशु ने भी अच्छा। की हुई है। देवर्षिता देवर्षिता जबलपुर से ही है। ओ वाह, हाँ, अच्छा देवर्षिता तो रिलेट कर पाए। अच्छा अच्छा। ये बात बंद कर दो। सो क्या हुआ कि ही, अच्छा, तो वो ना, वो ग्रेवयार्ड के अंदर उन्होंने कहा था कि शमशान घाट था, तो कहते इधर जाके डायनामिक तुम शुरू करो, करनी है तुम्हें डायनामिक। सो जो थर्ड स्टेज है डायनामिक का, हु जो हम बेली से हु करते हैं। सो आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर लाइक मे बी अ वीक, वो कहते कि मुझे ना, जब मैं हु करता हूँ, तो मुझे आत्माएं आके बोलती हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम आपको मार देंगे। जो साइलेंस का स्टेज होता है फोर्थ स्टेज के अंदर। सो थोड़े दिन तो उन्होंने ये बेयर कर लिया। वो वापस ओशो के पास गए, एंड ओशो ने कहा कि इसी वजह से मैं तुम्हें वहां पे बोल रहा हूँ कि तुम जाके डायनामिक मेडिटेशन करो। एंड कहते कि तुम हु इतना पावरफुल मंत्र है कि
जो अब स्टोरी बताने में थोड़ी सी शायद भूल रहा हूँ, पर उसमें कुछ ऐसा था कि कुछ स्पिरिट्स ने जो नेटिव स्पिरिट्स थी वहाँ की, उनको बंदी काइंड ऑफ बना लिया था। तो वो हू की वजह से 2 स्पिरिट्स वर रिलीज्ड, एंड वहाँ पे फिर ये जबलपुर का आश्रम बना, एंड लाइक दैट्स हाउ द स्टोरी गोज। आनंद जी ने मुझे बताया था, जो स्वामी अनादि हैं जबलपुर के आश्रम में जो रन करते हैं, उनके पापा, ही इज स्टिल अलाइव। तो उन्होंने डायनामिक किया था वहाँ पे। और अब वहाँ एंड आश्रम है ओशो का। हाँ, आश्रम वहाँ पे है। एंड आनंद जी ने बताया था कि हु के टाइम पे जो भी घर के अंदर भी कुछ भी अगर है, कोई नेगेटिविटी है, तो से हु मतलब उनको इतनी जोर से चोट पहुंचाती है कि दे कांट स्टैंड इट, एनी इविल थिंग और एनी नेगेटिव थिंग। सो वो डायनामिक के अंदर था। डायनामिक तो इट्स लाइक ब्लडी पावरफुल टेक्निक, वेरी पावरफुल। बहुत ज्यादा। पर आई एम वेरी शॉक्ड, ये पहली बार भूतों की बात हो रही है क्या आज? हाँ, ये आज तक नहीं हुआ, ये आपके रियली? हुआ है, कह रहा हूँ मैं आपको। ये आप इनकी देखोगे ना, ये भैया की यहाँ की बुक बुक का पड़े साइड पे, गूज बम्स ही पड़ी हुई है यहाँ पे सारी बुक्स। गूज बम्स, गूज बम्स, गूज बम्स, सारी हॉरर स्टोरीज है। अरे पर I'll share something. अभी not too long ago, maybe 2 years ago, मेरे को पूरा विश्वास हो गया था कि मेरे पे काला जादू हुआ है एंड मैं पोजेस्ड हूँ। मेरी मेंटल स्टेट ऐसी थी, आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग, लाइक आई विल टेल मोर अबाउट माई सेल्फ लेटर, पर देयर वाज दिस 1.5 month का फेज वेयर ऑन यूट्यूब आई स्टार्टेड फाइंडिंग धाम्स जहाँ पे एक्सेसिज्म होता है। सो गुड़गांव में देयर इज एक्चुअली अ धाम जहाँ पे एक्सेसिज्म होता है, एंड यूट्यूब पे यू कैन एक्चुअली लुक एट द थिंग एंड यू कैन सी कि people are just moving their head, and like हिमांशु mentioned उधर होता होएगा जो बालाजी, मतलब राजस्थान में। तो मेरे माइंड ने मुझे इतना कन्विंस कर लिया था कि कुछ नेगेटिव है मेरे अंदर, पक्का कोई काला जादू हुआ है। देन आई वेंट टू पुणे, फ्रॉम वेयर माय मेडिटेटिव जर्नी स्टार्टेड, एंड वहाँ पे आई मेट दिस पर्सन जो who could supposedly see all of these things and एस्ट्रोलॉजी करते थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, तुम्हारे पे तो किसी मुस्लिम ने ऐसे ऐसे किया है, और कोई हिंदू हिंदू ऐसे लोगों ने 2-3 करके तुम्हारे पे ऐसे ऐसे कुछ किया है। सो एनीवेज, लाइक वो सब कुछ उस टाइम पे इतना रियलिस्टिक लग रहा था, एज गुरमन सेड, कि उसके दिमाग ने उसको इतना बीमार कर दिया कि इतना पावरफुल है दिमाग। सो लाइक ये जो सारी चीजें है ना, जो हॉरर स्टफ है, इट माइट एग्जिस्ट, इट माइट नॉट एग्जिस्ट, पर जितना दिमाग तुम्हें, मे बी इफ इट इज 10%, तो वो 90% तो दिमाग के अंदर ही है सारा कुछ। सो वो लगना शुरू हो जाता है। सावित्री also has a horror story. हॉरर पॉडकास्ट हो गया है तो। आज क्या है, सारे हॉरर स्टोरीज निकालो। ओह भाई मेरे को डर लगता है यार, बस Actually- करो। नहीं, मैं ऐसे कोई स्टोरी नहीं बताने वाली। लाइक आई जस्ट वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन. So of course, like Gurman, you said there are like negative energies, right? तो मतलब पर हम सबके लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसे फेस आता ही है, like we face some like duration, and I had also like couple of years back, and हमारे घर में कुछ मिला था, like we found that कुछ तो एक था, उसमें कुछ कुछ लिखा था, like something, but our friend said वो actually कुछ किसी ने काला जादू. I don't believe in this, don't get me wrong. मैं बिलीव इसीलिए नहीं करती हूँ, like I just feel like what Deepan just said, like maybe 10% there is a negative energy around us, but 90% it's in our head, like we create that something. So I feel like मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही है, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट
कि हमारा we are not a mind, we are not a body, we are just a soul, right? And वो soul जब हम मर जाते हैं and that soul is around, and having that soul around is a bad thing, or I don't know, like maybe an open question, but how everyone feels like having that soul around is a bad thing, or maybe like there are bad souls, there are I good souls, or Nee, they have it's something, I yeah, think it's more of कि the mind does not like the unknown. right, So yeah, you know, yeah. हाँ, तो उसको जब कुछ पता नहीं है तो जो भी माइंड फॉर्म करे, it can be good or bad, so उस हिसाब से narrative फॉर्म हो जाता. And Exactly. the soul might not be even interested in us. क्या पता Yeah, correct. soul बस, you know. Yeah, इसीलिए मैं I'm little bit logical person, मैं logic समझना चाहती हूँ, like कि ये क्या है, like so of course like everyone knows in this group we are just a soul, right? We are not a body and mind. So वो soul जब हम मर जाता है तो वो रहेगा ही of course. तो वो कैसे नेगेटिव हो सकता है, एंड आई डोंट नो, लाइक इससे हमारे ना हमारे भी 2 हफ्ते पहले एक बहुत ब्यूटीफुल डिस्कशन हुई थी अबाउट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस. The chart that we put on the group also, if you would check the group, आपको मिलेगा वहां पे. मैं भी उसको देखना चाहूंगा एक बारी, है ना. तो उसमें अगर आप देखोगे ना, it is basically layers of where people are energetically, so it says, है ना, कि नीचे वाले जो layers होते हैं ना, the energetic frequencies are written, है ना. तो ये अगर आप 175 तक देखोगे ना, these are very low energetic states, जहाँ पे blame है, despair है, evil है, miserable, anxiety, hate, demanding, antagonistic, disappointing. These are the fears and our view of life. When we are stuck on those energetic levels, then life is hell. We are living in a hell only. There is no hell after this. We are in hell right now. absolutely. Lot of people go through their whole lifetime stuck in this energetic state, where they had so many desires that they had from this living world, this material, physical world, that when they have passed away, they could not accept it, because there is a transition that happens after we pass away, is what has basically taught us, that there is a transition that happens is when our energy goes out of our system and it goes on to the spiritual realm. But before going to the spiritual realm, there is a corridor in between, there is a midpoint, there's a bridge. That bridge is the astral world, where पहले वहां आती हैं souls and then they transition on to the spiritual world, which is our real home. But in this astral world is where ghosts are. And what happens is, for some spirits, for some energies, it's so hard to accept that they have passed away, that they can't be in that physical world, maybe because they were so attached to someone or something, some very strong desire. It is always a very strong desire, that they are not ready to move on yet. So like they don't fulfill that desire, no? They will Yeah. not transition. Now what happens is, people can meditate it like that and raise their energy. When the energy is raised, their consciousness is raised. When that is raised, they are able to move on, let go, and go to the other side. That's what happens. Because अभी क्या है ना, अभी I was listening to all of you. ओशो ने तो बड़ी सिंपली बोला हुआ है, पूरी दुनिया कब्रिस्तान है. If you think about it, we live on war land. We live on land right now जहाँ हमारे घर सारे built हैं. This was all, people have died here at some point in life. There are bodies buried everywhere on this earth. So पूरी धरती कब्रिस्तान, पूरी धरती is a graveyard. Just because we have dedicated a space to a graveyard or a mission ground,
you know, we feel ki negative spirits or energies will only exist there. Hmm. That is not how it works. That's so correct, actually, you know. Not how it It's, works. yeah, I mean, at this, I just realized we all like, you know, live here, and it was one point somebody died here. हाँ, especially in Yeah. like India तो is a यहाँ पे कितने wars हुए हैं, UK में कितने wars हुए हैं, हर जगह ही wars हुए हैं. There has always been dispute everywhere all the time. You know, there has Absolutely. been something people have just Hmm. yeah, it's a graveyard. So that really shifted my perspective on things. You know, if I have to feel that way about a graveyard or a cemetery, or wherever these bodies are being burnt, that is true for कितनी I know ना कितनी bodies इस घर के नीचे buried होंगी. I'm sure हैं, you know. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. और फिर you know, it just the whole concept of कि I know what the energy of that room was. Now I'm not saying some bad spirit was there, okay, but energy can also depend on a person who was there before and their state of mind, their thoughts. You know, हमें स्वामी जी ये भी बोलते थे अभी आश्रम में कि you know, when let's take a hotel room for example. You know, if some person lived there for some time, you know, who was going to kill a person, you know, their frequency and their state, you know, changes the energy of the room. So when you go into that room, when you check into that room after them, there is a very high chance that you have the same thoughts, that you have the same feelings as them, you know, because people, we all have energetic impressions, you know, even those वो आती है ना वो, you can see that infrared thingy, you know, where you can see people's energies, you know. ऐसे devices also exist now. So, you know, even after a person gets up from a place, they leave a stamp there of energy. You know, we leave our impressions everywhere that we go. And होता क्या है कि negative energies doesn't just mean कि there is a spirit there. It means कि it was owned by somebody, you know, who was in a certain place in their mind, certain state of mind. And, you know, the energetic impressions that they have left everywhere are just very low, but they can be converted. Hmm. Yeah. And when we were having all these, like some bad time at our home, and when my friend said, okay, you have something, might be something in your home, then I just, when I was doing some meditation, I said to that soul, you might not be happy, but you know, be happy in this house. You can stay here. I said that. So I said, you can stay. We'll keep you happy. You know? Yeah, and you don't have to worry about anything. Something like that I said, because just like, you know, yeah. Some people, like I have heard incidents from people very close to me about people invoking spirits. You know, they say they do certain rituals to actually call spirits and do all of that. You know, sometimes the spirit can get offended. Mm. You know, in terms of ki, you know, the spirit that is stuck is already so disturbed. You know, they are like a very mentally sick person, very mentally sick energy. You know, taunting them, doing those things to them, because people have no respect. People have no awareness about these things. You know, so a lot of people take all of this as a joke. Look at what people have made out of Halloween. Just for example, a very profound incident happened with me when I was around 15 years old. You know, मेरे आंटी हैं, which you know everyone I've told you about in London में, है ना. तो एक बारी मैं उनके घर गया हुआ था, and मेरा स्कूल था अगले दिन, and my school was only 2 minutes away from her house. तो रात को 12 बज गए थे, 11 बज गए थे, and she was like, Gurman, I'm going to central London to meet some people. Would you like to come? And I was like, sure, let's go. है ना. तो these were shamans. Okay, these shamans, they're from Peru. They conduct and hold space when a ceremony is happening.
many types of ceremonies happen, you know, plant medicine hoti hai. There are many things. I was really into things like that before. तो तो हम गए यहाँ पे रात को 12 बजे गए, है ना। ये लोग उठे हुए थे क्योंकि ये रात के टाइम सेरेमनीज करते थे। सो इनका बॉडी क्लॉक वाज सच कि रात को ये उठे होते थे, सुबह ये सोते थे, बहुत कम ही सोते थे। सो आई गो इनसाइड द हाउस एंड आई फील दिस explosion of energy. As soon as I enter the house, it's an explosion of energy, something I've never felt in my life. I go in, मैंने जमीन पे देखा ऐसे dry herbs पड़े हुए थे, which they were, it was dry sage everywhere, because before you do conducting ceremonies also they burn sage, they do all of the cleansing, they burn tobacco, they smoke tobacco. Tobacco is actually, in their culture, it is a cleansing mechanism. Tobacco is used to cleanse you of negative energies. Genuinely, this is not a joke. They have मेरा तो हुआ नहीं भाई। हाँ, नहीं हो जाए। अभी तो हम जो करते हैं वहाँ पे, तो कमर्शियल वाली जो चीजें होती हैं, these are very harmful for you. They have chemicals. But the pure version of tobacco, it's a black paste. It's a paste that they make. You know, they put it in their nose and they put it on their gum. It is a cleansing tool for them to go into a process. इससे क्या होता है, purging होती है इनकी पहले. You know, all the negativity, toxins that they have first get released before they take the medicine, so that the effect can happen. There is space for the medicine to actually come out. So we went, I saw all of that. My mind was blown. And this guy next to me, Shaman Jyothi, she was a woman. Never seen like a woman like that in my life. She was lioness. She had this lion energy. Matlab, so fierce. Matlab, very fierce. Never seen it in a man also. ज़्यादा बोल नहीं रही थी वो। उसका बॉयफ्रेंड था साथ में मेरे, तो he offered me, like he opened his, इसका बॉक्स था इतना, वो कहता do you want, काला काला सा पेस्ट। मैंने कहा ये क्या है? कहता this is tobacco। फिर ऐसे करके दिखा रहा है मुझे, कहता this is used for cleansing। मैंने कहा हाँ, तो मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने कहा बकवास मार रहे हैं। तो then they gave me some tea, they made some tea for me, and then she talks about Halloween was just around the corner, you know, and then she started talking. She was like, look at the people right now. It's the Day of the Dead. And, you know, they're bloody, like, roaming around in costumes, you know, making fun of such a important ritual and day, you know. So Halloween was actually the Day of the Dead, where you are supposed to remember your ancestors, you know. Now look at the shift in perspective modern media and the world has created around it. It's an opportunity now where people can dress up however they want to and make fun of the dead. So when you do things like that, it invokes a lot of negativity, a lot of these, it provokes them. You know, you're bound to have a lot of people agitated because the real meanings of things have been lost. You know, now imagine I was 15 years old. I had just come to London and I was looking forward to my Halloween and, you know, going to the Halloween party and all of that. But uske baad I could just never, because I really understood the deeper meaning behind it. Once that happens, na, things can break. Abhi to you can't blame the world because they don't know any better. They don't know these things. They just, वो तो वही करता है, वो आ रहे हैं, ऐसा चल रहा है, अभी वैसा चल रहा है। पर इन चीज़ों के पीछे बहुत डीपर मीनिंग्स हैं कि क्यों क्रिएट हुए थे, क्या मतलब है। You remembering our roots, our ancestors is so important to feel connected with yourself entirely. It was a very beautiful feeling I got after knowing like that. धीरे धीरे ना ऐसी सी चीजें होती है तुम्हारी लाइफ में, people come into your life and give you छोटे छोटे से gifts, and then you realize कि life is much more than what meets the eye. You know, so it's very beautiful. But now वही, अब तो क्या ही चल रहा है। अभी कोई कुछ बोलने वाला था यहाँ पे? भाई अभी नहीं कोई भूत वाली बात होएगी यहाँ पे। बहुत मैं अकेला रहता हूँ यार, तुम लोग फैमिलियों के साथ हो वहाँ पे।
थोड़ा समझो। रात है यहाँ पे, 11 बज गए, सवा 11। एक तो नया घर है, आज पहला दिन है रूम में, आप ऐसी बातें कर रहे हो। लाइट ऑफ कर लो भाई और मजा आएगा। गोरी दे के गई है स्पेशल मेरे को लैंप, कहती तू ऑन करके। उसको सामने बिठा लेना था। वो 80 साल की है, मेरे को उसी में लग रहा है कुछ आया हुआ है। फिर नहीं, फिर मेरे नहीं, को वही फिर किसी काम की नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है उसी में कुछ आया हुआ है तुम्हारी बातें सुन। नैना अभी जेलस होने वाली थी। ओ यार भाई, आप इंस्टा पे भी शुरू हो गए यार। और भी बंदे आए यार वहां पे, थोड़ा तो समझो। मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा हूँ, तुम बोल रहे हो अकेला हूँ। हम प्रॉब्लम में ही ठीक है, आप रहने दो। है ना, मैं तो ना झेलता, मैं तो ना ले पाता ये। नैना ईयरफोन उतार दो आप थोड़ी देर के लिए। ना आप हो कहाँ पे? कौन? आप मैं रांची, घर में। घर में? क्या चल रहा है, कैसे हो? बढ़िया हूँ, चल रहा है सही। ये वीक थोड़ा वैसा ही था, मेंटली उतना स्टेबल नहीं थी, बट मेडिटेशन मैंने किया इस वीक। अच्छा, जिब्रिश एवरी डे मॉर्निंग में मैंने किया है, बहुत अच्छी तो बात। तुम छत ठीक पे था। जाके करती हो ना जबरिश? हाँ, छत पे करती हूँ। तो नेबर्स नहीं बोलते कुछ? नहीं, उतने सुबह सुबह कोई रात को तो प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, मेरे को डर नहीं लगता। रात मैं को करण नहीं हूँ। देख लो, करण ऑपोजिट से अट्रैक्ट। तेरे को नहीं लगता ना लगे, मेरे को लगता है। करण और हिमांशु कहाँ पे है दोनों? न्यूजीलैंड में है? अच्छा, हाँ जी। easy। न्यूजीलैंड में है। बहुत देर से हैं ये लोग, तो पता इज नहीं अ पीसफुल कंट्री। यहाँ पर हाई लाइक जो ये आत्माएं वगैरह ये होती हैं, इनको पीसफुल जगहें पसंद होती है ना, तो मोर लाइक लोगों के घर नहीं है थोड़े दूर दूर तक, तो यहाँ यू पर नो व्हाट, ग्रेवयार्ड वाली बात से मुझे याद आया, लाइक मैं ऑक्सफोर्ड में था, आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप। तो यार आप फिर तो शुरू। यार, को गुरमन पता, के तो मैं मेरी वजह से ही उसकी टॉपिक शुरू वजह हुए से हैं आज यहाँ पे। प्रोटीन पीने लगा हूँ कि आ गया रात को लड़ तो सकूं उसके साथ। नहीं भैया, आप बताओ बताओ, ये वाली तो बताओ स्टोरी। इंटरेस्टिंग है, बताओ। हाँ, तो ना मेरे को क्या करना पड़ता था, मेरे को साइकिल पे जाना पड़ता था, और मेरी शिफ्ट खत्म होती थी रात के 3 बजे, एंड स्टार्ट होती थी शाम के 7 बजे, और 3 साढ़े 3 हम निकलते थे, 2-3 लोग। एंड वी यूज टू ऑलवेज पास थ्रू दिस ग्रेवयार्ड, एंड बड़ा ही अजीब लगता था उस टाइम पे। बहुत बहुत लंबा ग्रेवयार्ड था, लाइक अगर साइकिल पे आप नॉर्मली चला रहे हो तो अराउंड 1.5-2 मिनट्स तक वो ग्रेवयार्ड चलता था। इतना लंबा ग्रेवयार्ड था पीछे तक पूरा। तो दिन के टाइम में कभी साइकिल कर रहा हूँ तब कुछ नहीं फील होता था, रात के टाइम साइकिल कर रहा हूँ तो वो भी 3:30 बजे 4 बजे सुबह, तो बहुत अजीब सा लगता था। फिर घर भी जाना अकेले, वहां पे तो करण जैसे बोल रहा है कि सारा सन्नाटा होता है, और सारा ऐसे लगता है, तो ज्यादातर ये माइंड माइंड के अंदर ही है, कुछ नहीं है। सारा ये माइंड के अंदर ही है मेरे हिसाब से। I can see Karan is just diverting his mind. मैं आपको पता, मैं आपकी बातें सुन नहीं रहा, मैं बस सुन के अनसुनी कर रहा हूँ कि मेरे को कुछ याद ना रहे, क्योंकि अगर इतना सा भी याद रहेगा मेरे को नींद नहीं आनी। तुमने तो चले जाना अपने अपने घर में। सेशन और कर लेते तुम्हारे लिए।
मेरा ध्यान प्रोटीन को शेक करने में है बस। जिब्रिश कर लेना तुम सोने से पहले, बहुत सी आएगी तुम्हें। मेरे को ये डर है उसको ऐसे नहीं लगा मेरे अंदर कुछ आ गया और मेरे को अभी भी जो मैंने जिब्रिश किया मैंने पिल्लो मुंह पे रख के ऊंची ऊंची चीखें मारी, मैं कहा उसको फील ना हो जाए कुछ। हिला देना ना। धीरे धीरे खुलेगा करण। वही तो अभी मैं उसके साथ थोड़ा खुला हूँ, उससे 4-5 बातें की, उसको मनाया कि मैं यहाँ पे कुकिंग वुकिंग कर सकता हूँ सब कुछ, वो मान तो गई। बाकी देखते हैं, अभी कल छुट्टी है, कल उसके साथ बातें करूंगा 15-20 मिनट अच्छे से बैठा के उसको थोड़ी सी। ये 80 साल की गोरी, हम्म ये साथ में ये अपनी फ्लैटमेट है, मतलब हाउसमेट है। उसका घर है ये। फ्लैटमेट नहीं है, उसका घर है, हम फ्लैटमेट है यहाँ पे। रात को वही ना दिख जाए भाई, बाहर ना जाइए। नहीं नहीं करण उसको भी जिब्रिश कराओ साथ में, मजा आ जाएगा। मैं उसको आज ही बता दिया, मैं कहा मैं मेडिटेशन करनी होती है 1 घंटा, तो आप लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं। कहती नो नो आई एम आल्सो डूइंग दिस बट नॉट अ एक्टिव वन बट आई डू पैसिव वन, समटाइम आई जस्ट गो टू द चर्च एंड ऐसे बताने लगी। मैं कहा ओके ओके, तो मैं थोड़ा बहुत सुना। उसके बाद मेरे को कहती आई नीड टू गो, मैं कहा या यू कैन। मैं उसको ज्यादा छेड़ा नहीं, आज पहला दिन था, मैं कहा यार अभी अच्छा नहीं लगता। पर आप देखो गोरी है, उसने मेरे लिए आते सारी उसने मेरे लिए वेजिस बना के रखे था, तो उसको पता था मैं मूविंग कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी है वैसे तो, पहली बार मैं कभी मिला भी नहीं से, फर्स्ट डे उसने मेरे, उसको पता था, मैं उसको बोला मैं कहा मैं कुछ खाया नहीं सुबह से, आई एम टू हंग्री। कहती या वी मेक राइस एंड उसमें कोई सिंगल जैसे सिंगल गोरे खा गोरे, हाँ ये सिंगल ही होती है। करण बस रूम लॉक करके सोना। ये लास्ट है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, हाँ, दिखाओ दिखाओ। ये 2 लोग हैं यहाँ पे, एक ये वाला एक ये, दोनों लगाए मैंने तो अच्छा। ताकि कुछ फील ना हो मेरे को। अभी मेरा आधा स्टफ पड़ा है सेट करने वाला। नहीं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टुडे। ये तो पहली बार ही हुआ है, हमने हॉरर स्टोरीज के बारे में बात की है आज तो। आज का संडे सत्संग ये आखिरी बार ही हुआ है, पहली भी आखिरी भी। आज के बाद नहीं बात करनी इसके बारे में हमने। नहीं, मैं तो पहली बार आया संडे सेशन में, मुझे नहीं पता था हॉरर चीजों के बारे में भी बात होती है। और नहीं नहीं भाई, आप अच्छी बातें करो, बाकी एक्सपीरियंस बताओ, पर ये बातें ना करो। और हमारे यहाँ रात होती है भाई, आपके तो दिन ना, आप तो इधर उधर हो जाओगे, हम कहाँ कमरे के अलावा कहीं जा नहीं सकते। हीलिंग सेशन कराना तो कुछ और हो गया। नहीं, जिम चला जा, वहाँ और लोग होंगे। ये अभी मैं क्या हो गया? मैं मैं वही बोला तो था, मैं क्या अगर भूत जिम ज्वाइन कर ले वैसे। लेने के लिए आओगे नहीं आओगे? आ जाऊंगा, थोड़ा सा रूम सेट करना है, वैसे हाँ। आ जाऊंगा। नहीं, आज आ जाना कुंडलिनी के लिए, आज आपको ज्यादा जरूरत है।